Hello everyone. Today is our 10th episode of Unspoken Experiences. We have been bringing to you quite a lot of experiences from wide range of people, and the common thing among all of them is they all wanted to just keep trying until they succeed. Sometimes they must have felt that okay, no, abhi I'm feeling low and I cannot do anymore, I cannot go any further, but they still kept trying because there was this hope within them which was alive. Today as well, we have one another such experience with us from a person, and he'll be coming and joining you soon to tell his story, to share his experience, which really matters to him, and you guys might feel connected to it, and it might help you out. So just listen to it, like, share, and help others as well through this. So Aman, are you there? So till the time he joins, let me say, let me put it front a big apology from my end for not being regular with our Unspoken Experiences episodes for a while, and we are really trying to get back on the track. And usually it used to be on every Thursday, but nowadays we are thinking that we'll keep it on weekends so that people can join and more people can come and open up about their experiences, because somewhere, yes, we understand that you all have other jobs to do and you cannot only share your experiences. So from Thursday to Saturday and Sunday, any time you can come and share your experience with us and with everyone else, and they can just learn from your experience, or they might just feel motivated from it. If nothing else, I mean, that's the best thing I feel I can ever do for a person, that I can motivate them from just telling my story. So why not? So let me invite Aman. Hi, are you there? Okay, I think he'll be coming and joining us in a while. Till the time, if you guys have any question or anything that you want to ask about what is, something related to mental health, I might answer that for you through my perception and through my understanding, and whatever I have, learned through my way in this journey, I might answer that for you. So, any questions would be. Okay, I have a question for you all. So, would you like to answer that? Okay, I think he's there, I guess. Hi, Aman. How are you? Hi, how are you? I'm good. I cannot hear you properly. Your voice is breaking. Okay. Hi, I'm good. How are Hi. you? I'm good, all good. Just was finding it hard to make this session. I think since 3 weeks we were planning about this, and finally it is happening. So I'm really glad that it is happening, and I'm glad that you kept it till 3 weeks for sharing it, because I mean, people really drop out of sharing. They're like, okay, if it is not happening, let it be. I don't want to share it all. So, but you came No, along no, till no. with us till 3 weeks, and it was really appreciable. So, yeah, anything that Hmm. you would like to share? Or you would like to introduce yourself Share. first, like give a bit intro about yourself. Yeah. Hi, this is Aman Kumar Upadhyay, है ना? And क्या है कि बस इंट्रोडक्शन तो इतना ही है, नाम ही काफी होता है ना? I mean, however you like to तो introduce yourself. That's all right. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यार, क्या किया जाए? अपने इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन खाली Hmm. ये होता है कि आपका जो एक्सपीरियंसेस से जो आप बने हो, एक Hmm. वो एक होता है, बस दैट्स इट, है ना? Hmm. True. इसमें जो मेरी एक्सपीरियंसेस रही हैं
वो, और आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस ने वो सब मेरे को बनाया है। ठीक है, Hmm. तो हर चीज से True. सीख ली है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। हर स्टेप पे ठोकरें खाई हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आए Hmm. हैं। ठीक है, आती रहती है, जिंदगी इसे ही कहते हैं। ठीक, और इसी True. से इंसान आगे बढ़ता है ना। Yeah, you learn from it, स्ट्रगल, right? बस जिंदगी में स्ट्रगल नहीं रहेगा, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक, I totally और vouch for it. और एक चीज जो मैंने सीखी कि लोग कहते हैं ना कि भाई अपनी गलती से ज्यादा अपनी गलतियों से सीखो। जब तक खुद को ठोकर नहीं लगेगी तब तक सीखोगे नहीं। अपनी गलती से ज्यादा ना दूसरों की गलतियों से सीखो, उससे ज्यादा Okay. सबक मिलता है। तो वही है, Hmm. बाकी Hmm. एक्सपीरियंसेस ऐसी ऐसी रही हैं, Hmm. तो ठीक है। So, any one of the experience that you would like to share with every other person out there whom you think can be inspired or motivated or can find a sense of hope that okay, I am not alone in all of this, and that you would like to share with all of them. तो क्या होता है ना कि अ, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा स्टेज आता है जब वो अपने आप Hmm. को पूरा लो फील करता है। ठीक, अब Yeah. लो फील करता है तो उसको बस ऐसा लगता है कि यार अब कुछ कर नहीं पाएंगे। बट नहीं, इसके आगे भी है, कर सकते हो यार, बस अपने ऊपर थोड़ा सा फेथ रखो। ठीक, अपने Hmm. ऊपर विश्वास रखो, बस अपना ध्यान दो तो आगे बढ़ जाओगे, है ना। True. बस यही है। बाकी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, कॉलेज लाइफ, मतलब स्कूल से लेके अब तक, और कॉलेज लाइफ भी, बस Hmm. ये था कि चल रही थी जिंदगी। ठीक, Hmm. बट जैसे जैसे था उधर क्या हुआ, कॉलेज में एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं, So someone is saying हाँ, that they can share ऐस, your experiences as well. हाँ, नहीं ठीक है। So I'm एक्चुअली glad, Aditya, that you can share his experiences. But we'll call you upon, and you can share his experiences and yours as well. But yeah, let's listen to Aman first, what he has to say about it. एक्चुअली क्या था ना, कॉलेज लाइफ में बस ऐसे लोगों से मैं जुड़ गया जो कि Hmm. मेरे लिए, मेरे को बाद में जाके पता चला कि मेरे लिए हानिकारक है। ठीक, उसके बाद मैं इतना ज्यादा उनसे क्लोज हो गया कि मेरे को समझ नहीं आया, पता ही नहीं चला। Hmm. लेकिन फिर जब तक मुझे पता चला, मैं अपने सबसे लोएस्ट सिचुएशन में था, Hmm. वर्स्ट सिचुएशन में था। अब उधर से आगे कैसे बढ़ा जाए, कुछ समझ नहीं था। हर Hmm. चीज अपनाया कि भाई कैसे बढ़ा जाए, नहीं समझ में आया। Hmm. बट धीरे धीरे एक इंसान था जो मेरी जिंदगी में, जो मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। और ऐसा, हाँ, वो खाली इंसान मेरे साथ खड़ा था। देख, Hmm. ऐसा कभी नहीं होता है कि इंसान, मैं उसकी वजह से आगे बढ़ा। नहीं, आप आगे Hmm. बढ़ोगे खुद के डिसीजन से। True. ठीक, जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, आप भगवान भी नीचे आ जाए, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। True. ठीक, तो बस ये Hmm. था कि मुझे अपना डिसीजन लेना था कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ता गया। मैं एक Hmm. ऐसे इंसान से कांटेक्ट में आ गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे कांटेक्ट में आ गया और इतना ज्यादा लगाव कैसे हो गया। ठीक, Hmm. जब तक पता चला कि मेरे, यार ये तो हानिकारक हो रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, तो Hmm. तब तक बुरी हालत हो चुकी थी। Hmm. फिर कैसे भी करके जब आगे बढ़ने की सोचे, Hmm. फिर ये था ना कि एक ऐसा पॉइंट आया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब अगर आगे यहाँ से बढ़ा तो मुझे पीछे देखना नहीं है। ठीक, और Yeah. मैंने उसके बाद फिर कभी पीछे देखा नहीं। Hmm. So you were मैं like आगे बढ़ता गया। hard stand on your choice that हाँ अब मैंने ये choice बना ली है तो अब मुझे इससे पीछे नहीं जाना है. I'm here, I'm sticking and I'm moving forward. So there was this. ये ये डिसीजन लेने का भी रीजन ये था ना कि एक बार की बात है, मैं जस्ट आईने में अपना चेहरा देखा, तब जाके ऐसा Hmm. लगा कि क्या ये वही अमन था जो थोड़ा खुश रहता था, हमेशा हंसता खेलता था। नहीं, बहुत चेंजेस नजर आई।
उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न मारना जरूरी है, वापस से चलते हैं जहां पे पहले थे, खुश रहते हैं। तो उसके बाद मैंने डिसीजन किया कि नहीं, अब अगर आगे बढ़ा मैं पीछे कभी नहीं देखूंगा, और आज तक कभी पीछे देखा नहीं, मैं बढ़ता गया, बस दैट्स इट। उसके बाद बढ़ता That's गया। really appreciative because usually we are stuck at the same point so much that we feel like there's no moving forward and I'm just stuck and I cannot do anything. There's a sense of hopeless, worthlessness. I think बहुत सारे इमोशंस मिक्स्ड इमोशंस फील करते हैं बट वी नेवर थिंक ऑफ इट इज एट दैट वे दैट ओके आई हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड दिस हियर इट इज डन सो दैट्स रियली अप्रिशिएटेड इंसान को जब तक इंसान अपना खुद डिसीजन नहीं बनाएगा ना, नहीं होगा कुछ। क्योंकि ट्रू जब तक खुद डिसीजन बनाओगे नहीं यार, तो आगे बढ़ोगे कैसे? और ऐसा नहीं है कि यार वो इंसान चला गया तो यार क्या होगा, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, यार मैं तो अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, यार ये नहीं होगा, यार वो नहीं होगा। नहीं यार, इससे आगे भी बहुत जिंदगी पड़ी, ठीक, बहुत आगे बढ़ सकते हो। बस अपने पर विश्वास रखो। डिफिकल्टीज हो, बहुत सारे ऐसे आएंगे यार, लो, उसके बाद भी लो फील करोगे, बट नहीं, आगे बढ़ते जाओ, ठीक, विश्वास रखो, आगे बढ़ते जाओ। राइट और उसके बाद आगे मैं So बढ़ता would you गया, बढ़ता गया। like to share right? So would you like to share what was the experience for you? Like in a brief, whatever you can touch upon. Like this was the situation, and what emotions did you feel in those situations? एक्चुअली क्या था ना, मैं उस चीज को तो फिर से याद करना नहीं चाहता, बट Okay. ये है कि मैं उसको जस्ट पॉइंट्स में बता सकता हूँ कि मैं ऐसे इंसान से कांटेक्ट में था, देख वो शायद शुरुआती के दौर थे कॉलेज लाइफ के, ऐसे कांटेक्ट में आ गया कि मेरे को पता नहीं चला कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर आगे बढ़ा, फिर एक्चुअली एक बार के बाद फिर मेरा शायद थर्ड ईयर था, हाँ, थर्ड ईयर के एंड में मुझे पता चला कि नहीं, ये इंसान नहीं ठीक है, इंसान ठीक नहीं है। लेकिन वो एक्चुअली क्या था ना, हर लड़का धोखा खाता है इश्क में, एक सिचुएशन भी वही थी। अब उसके बाद मैं इतना ज्यादा क्लोज था कि भाई समझ नहीं था क्या किया जाए। फिर मैंने सारे नशे अपनाए, ठीक, आई वॉज ड्रग एडिक्ट, सब चीज, ठीक। कौन सा नशा नहीं किया होगा जो याद नहीं मेरे को, जबकि सारे कर लिए। उसके बाद फिर वो कुछ दौर था जो मुझे बहुत डिफिकल्ट था। मैंने कुछ अपनी जिंदगी एंड करने की भी सोची, बट ठीक है। फिर मैंने ये किया, सारे नशे, कुछ जिंदगी एंड करने की भी कोशिशें की, बट उसके बाद फिर एक पॉइंट आया जो मैंने आईने वाली बात बताई। अपना चेहरा आईने में देखा, चेहरा ऐसा लग रहा था कि यार क्या चेहरा बन गया है, चेहरे पे खुशी नहीं, चेहरा पूरा उतरा हुआ। तो ऐसा लगता था कि यार नहीं, ऐसा अमन ऐसा नहीं था कभी। अमन हमेशा हंसता खेलता था अपने दोस्तों के साथ, हंसी मजाक सब चीज। दोस्तों से भी बहुत कट गया, दोस्त मेरा साथ छोड़ दिए। तो ये था कि उनका साथ छोड़ना भी मेरी वजह से ही था, एक, बस ये था। फिर मैंने डिसाइड किया, उसके बाद फिर था कि कॉलेज का सेमेस्टर एंड हुआ, घर जाना था, छुट्टी थी। फिर हुआ कि यार अब अगर मैंने गेट के बाहर कदम रखा ना, तो मैं इसके बाद पीछे कभी देखूंगा नहीं। मैंने पीछे देखी नहीं, और फिर मैं बढ़ता गया। मैंने उसके बाद कभी पुरानी चीजों को याद नहीं किया, हमेशा कोशिश किया कि मैं जितना अपने दोस्तों के साथ रहूं, सब चीज, दैट्स इट। और फिर जब फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ, आई वॉज नेवर ए टॉपर स्टूडेंट, ठीक, एवरेज के आसपास ही खेलता था मैं, ठीक। लेकिन ये विश्वास था, और दोस्तों में क्या, कॉलेज में ये था कि प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, ठीक,
किसी का हो जाए तो बहुत बढ़िया। मेरा ये था कि इसका तो भूल के भी नहीं होगा। एवरेज स्टूडेंट्स का कहाँ ही होता है, टॉपर्स ही हाथ मार के ले जाते हैं। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं पहली कंपनी में बैठा एंड आई वॉज प्लेस्ड। बस ये That's था कि great. मैंने पूरा फाइनल ईयर अपना फोकस लगाए रखा कि नहीं, ये चीज अचीव करना है तो अचीव करना है, ठीक। इसके बाद कुछ नहीं या इसके Right. पहले कुछ नहीं, दैट्स इट। आई वाज प्लेस्ड, बढ़िया। फिर आगे बढ़ता गया, जॉब में आया। जॉब में भी बहुत डिफिकल्टीज हुई, बट अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, मैं कर लूंगा आगे, ठीक। मैं आगे हूँ। आज तक पीछे चीजों को याद किया नहीं। ये है ना कि यार, एक सलाह देना चाहता हूँ सबको कि किसी इंसान को इतना दिल से ना लगाओ कि बाद में कभी उस इंसान से पीछा छूटे, कि वो इंसान जाए तो आपको। Right. So you were so connected to that one person, and it felt like the whole life is shattered. Somewhere पूरी जिंदगी ऐसे बिखर रही है, and मैं उसको समेट नहीं पा रहा. Right. Right. Hello. You can hear me, right? Hello. Hello. Aman, you there? Hello. Yeah, I can. Yeah, it's in कैन यू हियर breaking. मी? Like yeah, it's breaking, but I can. कैन यू हियर मी ना? Yeah, it's better now. तो वो था ना कि यार, मैं, हाँ, ये कह रहा था कि हम जितना लोगों को सोचते हैं ना यार, हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। उनका ख्याल रखने के बजाय अपना ख्याल रखोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे और खुश रहोगे, दैट्स इट। Right. Self-love and self-care is the first step towards anything, I guess. That's what you're trying to say, एग्जैक्टली, right? Right. खुद का So, ध्यान रखो ना। right, we should. So, would you like to share about what all emotions that you went through at that point of time? And how did you actually cope up with it? Like this, even after deciding, ये रहता है ना कि हाँ वो emotions अभी भी है. So, time के साथ ही you cope up. But how did you actually cope up with those emotions that you felt? जब जब एक्चुअली क्या था ना, नशा करते टाइम मुझे ये फील होता था कि अच्छा लग रहा है, ठीक। Right. आई फेल्ट लाइक, नहीं, ये बढ़िया है, ये अच्छी चीज है, तो मैं करता था, ठीक। बट उसके बाद फिर हुआ कि मैंने कहीं नहीं, जब चेहरा देखने के बाद समझ में आया कि नहीं, क्या किया जाए, ये तो गलत है। तो ये था ना कि यार, जब भी सामने वाले इंसान की याद आती थी तो मैं चालू हो जाता था, मैं हाथ में कुछ भी लेकर नशा करना चालू फिर से। तो ये चीज था। तो ये था कि जब भी उसकी याद आए, जब भी या कभी वो सामने दिख जाए, तो ये चीज। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये था कि फाइनल ईयर में जब सब चीजें खत्म हुई, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पीछे नहीं देखना है। बट उसके बाद भी वो इंसान मेरे सामने ही खड़ा था, हर पॉइंट, सुबह से लेकर शाम में मेरे सामने ही खड़ा है, मैं देख रहा हूँ, सब चीज है। उसके बाद भी जो मैंने डिसीजन लिए हैं, उसको, उसमें मुझे अडिग रहना है। वही चीज है, डिसीजन लेना मेरे लिए, डिसीजन कोई भी ले सकता है, बट उस पर अडिग रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। Right. So consistency is somewhere which कंसिस्टेंसी is उस important. पे जो है वो डिफिकल्ट रहती है कि भाई अब इसके बाद क्या किया जाए, नहीं हो पाएगा, ठीक। So तो what was the one thing that made you like stick onto it? That I've made a decision, अब मैं इसी पे stick रहूंगा. What was that one thing that was,
all along with you? कि मुझे प्लेसमेंट लेना है और मुझे पीछे नहीं देखना है, Hmm. दैट्स So इट। it was एक more टारगेट like मैंने सेट किया आगे था, बढ़ना. Right, right. हाँ एक टारगेट मैंने सेट किया था कि Hmm. एक टारगेट है, यहां से मेरे को अपनी नजर नहीं हटानी है चाहे कुछ भी हो जाए, Right. ठीक। Hmm. मैंने टारगेट पे ही अपना नजर बनाए रखा और वो साल भी खत्म हो गया। ये है ना कि अपना एक गोल सेट करो यार, जब तक गोल सेट करोगे नहीं ना, नहीं होगा कुछ, चाहे Hmm. कितने डिसीजन ले लो, वो डिसीजन भी ऐसे ही रहेगा। अपने दिमाग में जब तक Hmm. बनाओगे नहीं ना कि नहीं मुझे करना है, Hmm. ठीक, मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, Hmm. ठीक, चाहे वो इंसान ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए या आगे भगवान भी बोले कि नहीं बेटा तुम मत करो, नहीं मुझे Hmm. करना है तो करना है, दैट्स इट, ठीक, और Hmm. बढ़ते जाओ, Right. है ना, वही चीज है। Right. अपना एक टारगेट सेट करो। Hmm. So like first of all you decided कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये चीज करनी है, and then you were like अब ये फिक्स है, अब मुझे चाहे जैसे रास्ता मिलेगा मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा, and with all the resources पहुंचूंगा, that you had, be it motivation, be it anything, any kind of internal motivation that you had, मैं internal resources that you had. मैंने कभी जो टारगेट सेट किया, मैंने कभी दिमाग में ये नहीं लगाया कि यार इसमें इसमें इतनी डिफिकल्टीज आएंगी, इसमें इतने स्ट्रगल्स आएंगे, या Hmm. ये हर्डल्स आएंगी, देख यार मुझे परेशानी होगी, या मैं कैसे करूंगा, या क्या करूंगा, क्यों करूं, नहीं, मेरे पास क्या क्यों का सवाल, इन सवालों का जवाब नहीं था, बट मैंने था कि Hmm. अब चलना है तो चलना है, दैट्स इट। अब चाहे Hmm. पत्थर के गोले आए या जो आए, आगे बढ़ने Hmm. के लिए सोचा है तो सोच को खत्म कर, उस टारगेट को अचीव करके ही शांत होंगे, बस। Right. क्योंकि So एक एक चीज ये था ना कि Hmm. सामने इंसान था, मुझे उसको भी तो टैकल करना है, उस प्रॉब्लम को भी तो टैकल करना है कि वो इंसान मेरे सामने घूम रहा है, ठीक। Hmm. अब जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, ठीक, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि कैसे I'm किया sure. जाए, ठीक, बस Hmm. ये था कि सोच रखा था Hmm. अपने ऊपर। मैंने कहा ना कि जब तक खुद एक टारगेट सेट नहीं करोगे नहीं होगा कुछ। मैंने टारगेट सेट किया मैं कि बाकी चीज बाद में आएंगी, पहले वो चीज है उसको कंप्लीट करते हैं, चाहे जैसे करना Right. हो, ठीक, चाहे जितने स्ट्रगल्स आनी है, हर्डल्स आना है, जो आना है आए, मैं Hmm. करता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा ये चीज, मैंने Right. कर लिया, अचीव कर लिया, दैट्स इट। ठीक है Right. ना कि So और there was this one. ऐसा नहीं है कि Hmm. मैं हूं या कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान ही कर सकता है, हर कोई कर Hmm. सकता है यार, ठीक, Hmm. बस अपने ऊपर विश्वास रखने की देर है, Right. So ठीक। you had that आप confidence within you that I can do it, and the hope that I will achieve no matter what. हम्म Right. ये था। और कोई भी इंसान ये अचीव कर सकता है अपने गोल। गोल ऐसा नहीं होता है कि अब बहुत डिफिकल्ट गोल, गोल्स बहुत आसान होता है, बस उसको Hmm. खुद पर विश्वास रखने की देर होती है, और कोई भी अचीव कर सकता है, चाहे बड़े से बड़ा गोल क्यों ना हो, ठीक, Right. बस खुद पे विश्वास रखने की देर होती है, Hmm. Right. ठीक, So you had that वही confidence. चीज है, Right. So I एग्जैक्टली। mean, hats off to you. Whatever you have been through, and then the day you decided and targeted yourself that okay, now I have to achieve this goal, and I'm gonna do it at I mean, whatever cost. I mean, it's really appreciative. क्योंकि हम सब कहीं ना किसी तरीके से इस सिचुएशन में होते हैं, and that situation is somewhere very much painful to us, और हम एक वो ऐसा डेडफुल इमोशन फील कर रहे होते हैं जिससे हम सोचते हैं हम बाहर नहीं निकल सकते, बट इवेंचुअली यू केम आउट ऑफ इट एंड यू डिड, यू सेट योर गोल, यू मूव टूवर्ड्स इट, एंड यू केप्ट दैट होप एंड कॉन्फिडेंस अलाइव. आई एम श्योर कभी ना कभी लो हुए होंगे वो कॉन्फिडेंस, वो होप, बट देन अगेन यू रिवाइव्ड इट. So that's something really heads off. So how did you manage when the speed breakers in your destination that came, as in you said whenever you had to face that she's already there or the person is already there, then how did you move along by facing it? जब भी इंसान सामने आता था मैं वहां से हट जाता था, Hmm. ठीक, कि मुझे उसके बारे में हट, एक तो ये तरीका था हट जाना, और उसके बाद सोचना ही मत कि वो इंसान है ही नहीं आपके सामने, तो मैं बस इसी तरीके से वो टैकल करता है। ऑब्वियसली वो इंसान सामने खड़ा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक, Right. कि कैसे किया जाए, क्यों किया जाए,
ठीक, बट उसके दिमाग में ये था कि नहीं, कुछ सोचा है, करना है, ठीक, यहाँ से पीछे नहीं हटना है। जब सामने वाले इंसान को भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे को क्यों पड़े फर्क? Right. ठीक, वो Hmm. इंसान जब जाना था तो वो इंसान को ही फर्क नहीं पड़ा, तो हम क्यों Hmm. इतना अपने सर पे बोझ लेके जाएं? Hmm. बस ये था कि जब भी सामने कोई दिखता मैं हट जाता वहां से, या तो दिमाग में ये बना बना लेता कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैं Hmm. जहां हूँ वहीं हूँ, ठीक हूँ, मैं आगे Hmm. बढ़ने को सोचा है, तो ये चीज कंप्लीट करते हैं। Hmm. So instead of thinking है ना? about the thoughts which were, stopping you from moving forward, you thought about the thoughts which is helping you move forward, that I have to achieve this goal. मुझे आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, वो है. And then you again took that and worked on that as well. साइड बाय साइड उस पर वर्क भी किया. ये नहीं कि उस इमोशन को दबा दिया या उसे बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं किया. You worked on that as well and then you moved forward, right? ऑब्वियसली। और फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि इंसान सामने Hmm. खड़ा होने के बाद भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ना बंद हो गया। ठीक, Hmm. उस पर वर्क करते रहो। जो आपकी वीक पॉइंट होती है ना, ज्यादा उस पर वर्क करो। स्ट्रांग पॉइंट पे तो कोई भी आगे बढ़ जाता है, मैं वीक Right. पॉइंट पे आगे बढ़ के दिखाऊं, तब पता चलता है। And तो the hardest point स्ट्रांग is to पॉइंट, accept those weak points. हम्म स्ट्रांग पॉइंट से क्या है? स्ट्रांग पॉइंट तो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, आप कभी भी उस मूव को चलोगे तो Hmm. Right. Hmm. 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 Right. But from what you are saying, I can figure out that while working on the weak points, you actually kept your focus on your strong points as well. That I have the confidence, I can do it. Those were your strong points, that you had that hope within you alive. And वो strong points को दिमाग में रखते हुए you kept on working with the weak points. स्ट्रांग पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे कि Hmm. अगर मैं इन स्ट्रांग पॉइंट से चलूंगा तो मैं ऑब्वियसली आगे बढ़ ही जाऊंगा, कोई फिर रोक नहीं Right. पाएगा। लेकिन Right. वीक पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, जहां पे कोई भी आके आपको रोक सकता है। अपने वीक पॉइंट से चलो, Hmm. अपने Hmm. वीक पॉइंट्स पे ज्यादा वर्क करो रेदर स्ट्रांग पॉइंट। स्ट्रांग पॉइंट ऐसा Right. होता है ना कि आप के अंदर स्ट्रांगली होता है, ठीक, Hmm. आप उससे आगे बढ़ जाते हो कैसे भी। Hmm. वीक पॉइंट्स ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, तो मैंने वही किया। स्ट्रांग पॉइंट्स अपने साथ लेके चला, वीक पॉइंट्स पे वर्क किया और आगे Hmm. बढ़ गया। दैट्स इट। That's good. So you kept in mind the strong points. That's the biggest thing. I think even I somewhere in my life felt that I don't have any strong point, and that's what let me down. And then when I realized that there are strong points about me, or there are things which I can do, and which are my talents, my skills, that made me come out of any situation that I was in till today. It helps me out, right? So yeah, and okay, so I wanted to ask you, what do you think about support, like asking help from anyone? How was that for you? Was that difficult? Did you ask for help? Did you not? हाँ, मैंने हेल्प के लिए मैंने मांगा, ठीक, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक इंसान ने हमेशा मेरा साथ दिया। कोई भी सिचुएशन हुआ Hmm. तो उसने मेरा साथ दिया, और ये था कि उसने ये कही थी कि तू जहां भी चलेगा, जैसे भी चलेगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, Hmm. तू चलता जा बस। बट ये है Right. कि उस सपोर्ट तब मिलता है ना जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो कि नहीं, वो Hmm. बंदा एफर्ट डाल रहा है तो मुझे भी एफर्ट डालना चाहिए। ये Hmm. नहीं कि आप तो अपना अलग ही दिशा में चल रहे हो और वो Hmm. इंसान फिर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। नहीं सपोर्ट करेगा भाई साहब, ऐसे Right. नहीं सपोर्ट मिलता है किसी का। आपको Hmm. भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तब आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक, Right. तो कुछ Right. तो वो है। तो So उस that's good. इंसान ने वैसे ही मेरे को सपोर्ट किया। तो उसने Hmm. ये कही थी कि भाई, डिसीजन तेरा है, मैं खाली साथ खड़ा हो सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता।
ठीक, Uh, डिसीजन तुझे लेना है, कैसे आगे बढ़ना है वो तू देख, बट जैसे ही बढ़ेगा मैं साथ हूँ। ठीक है। right. So, I mean, you are fortunate enough to have a friend like that, that who was supporting you no matter what. And हम्म। I think we all just need to do that for our friends and for ourselves as well. We need to support ourselves and the other person who is going through the same feeling. So we can just be there. We don't have to really tell them you can do this, that, or that nothing really works, because until unless हमने नहीं सोचा होता है कि हमें क्या करना है, कोई भी हमें आके बोल दे कि ये कर लो, that doesn't really work. So I mean, really fortunate enough to have a friend like this, and I really appreciate that friend, that he had that within him, that he could be there as a safeguard for you, as a light for you, that whenever you wanted to share something or whenever you wanted to tell something, that you can go to that person and you can always be like, bro, this has happened. So I think that's something, right? So what do you think about professional help? I think, see, this is somewhere your friend who was helping you out, who was somewhere informal. You could be. What do you think about professional help? Did you have you gone to anyone like who's a psychologist or counselor or नो, anywhere else? No. So what do you नो, think about it? actually I did not opt that option to go to a psychiatrist or anywhere else. Hmm. बस ये था, साइकेट्रिस्ट, एक बात, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने में ऐसा तो नहीं वो कोई दवा ववा दे देगा तो आप एकदम चल पड़ोगे। डिसीजन तो वो भी यही बोलेगा ना कि भाई डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक, वो खाली समझा सकता है। मेरे पास साइकेट्रिस्ट जो कहो वो इंसान था कि मैं जब भी उसके पास बैठता मुझे कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती, समझने को मिलती, ठीक, तो मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ी नहीं, Right. मेरे So पास वही इनफ था। right. But have you gotten the help, this kind of help from a professional? Would it be good enough? Like you got it from a friend, that's really good. For you are fortunate enough, but not everyone has that kind of a friend. So what do you think? Like, if अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं होता या कोई ऐसा support नहीं होता, would you have considered that kind of a help from the professional? एक्चुअली अगर नहीं होता फिर तो जाना पड़ता, लेकिन अगर जिस इंसान ने मेरे को इतना जाना है, इतना समझा है, उससे बड़ा साइकेट्रिस्ट या जो भी कहें वो नहीं हो सकता है। जिस इंसान ने मेरे हर मोमेंट में मेरा साथ दिया है, इतना मेरे को जाना है, इतना समझा है, उससे अच्छा इंसान या उससे अच्छा साइकेट्रिस्ट या जो कहें मुझे नहीं मिलता, ठीक। तो मेरे लिए वही काफी था। अगर नहीं होता ऐसा इंसान तब जाने की सोचता कि कैसे किया जाए, ठीक। अब है तो जाने की जरूरत नहीं, वो काफी था मेरे लिए। I'm sure, and I really appreciate your friend as well to be there for you. I think really people just advise our friends like, okay, do this, we are there, but we don't really be there. So it's just more about saying rather than doing by the acts. So that's really good. So anything that you would still like to share about all of this experience, or one thing that you would like to share others that they can do that will help them out? एक्चुअली क्या है ना, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने पर ध्यान दो, ठीक। अपने पे ध्यान दो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो, ठीक। जितना अपने ऊपर या अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे आप ज्यादा आगे बढ़ोगे। और अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करो, वो गोल सेट करने के बाद उस पर वर्क करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप बस एक ये है कि हाँ, अपने पे ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं होगा। दूसरों के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। Right. So I think what I have learned from you today is that just to set a goal, like once you decide, you have to make a decision. I think I'll go in the trail that what you have said. So you made a decision and then you stick on to it by setting a goal for yourself, that no matter what happens, but I'll stick to my goal and I'll keep moving forward. And as I keep moving forward, जो भी
I mean, जो भी speed breakers आएंगे, जो भी challenges आएंगे, and I'll face this with my confidence, with my hope that is there that I can achieve it. And along with that, there was a friend with you who was supportive. I mean, I will say a supportive human being. Let's not call it a friend or anyone. That's a supportive human being. So be it a friend, or even if you don't have a friend, you can ask for help from professionals as well. But that's being there, and then you kept in mind your strong points, and you kept in working for your weak points that you felt that, okay, this is somewhere I need to work. And I think one step at a time you worked on it, and you were still feeling those difficult situations, and then you still were like, no, I have to do it, because of that confidence and the hope that you had alive. And you kept moving forward. So was that like a crux of it, if I'm right? हाँ, कह सकते हैं. कर सकते हैं, right? Thank you so much, Aman. I mean, you have really, I'm sure you have really gone through a lot of difficulties, and it takes real courage to come up over here on the social media to speak about it, because we don't really speak up in front of others, but you came till all the way over here and spoke about it, and you are really doing well in your life and much appreciated. So thank you for just being there for yourself, and to your friend too, who was there with you all the time and who was supportive for you. Thank you so much. Thank you. So we'll see you guys in the Next episode of Unspoken Experiences, which is going to take place now on weekends, because we have shifted from Thursday to either Saturdays or Sundays. We'll let you know a day before on which day it is, and we'll be live at 6. See you there. Bye-bye. And I hope you have learned a lot from Aman and from today's episode. Thank you.